स्वागतम। अरे बोलो बोलो जय श्री राम। अरे जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जोर से बोलो जय श्री राम, जय 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 श्री राम। भारत माয়ের দামাল ছেলে যোগী জি স্বাগতম, ভারত মায়ের দামাল ছেলে যোগী জি স্বাগতম। ভারত মায়ের দামাল ছেলে যোগী জি স্বাগতম। হিন্দুর হৃদয় সম্রাট যোগী জি স্বাগতম, হিন্দুর হৃদয় সম্রাট যোগী জি স্বাগতম। भारत माता की, भारत माता की। अरे बोलो बोलो जय श्री राम, जय 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 श्री राम। Hello, 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 hello. বলুন যোগী জি স্বাগতম। হিন্দু নয়নের মণি আমাদের যোগী জি স্বাগতম। এবার আমাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের হৃদয় সম্রাট আমাদের যোগী আদিত্যনাথজিকে বরণ করে নেবেন আমাদের জেলা সভাপতি এবং আমাদের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নির্মল শাহ এবং আমাদের জেলা সভাপতি লড়াকু নেতা সম্মানীয় শাখারাব সরকার মহাশয় যোগীজিকে বরণ করে নিচ্ছেন। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আপনাদের এই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আমাদের ডাক্তার নির্মল শাহ মহাশয়। উনাকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। বন্দে মাতরম। মঞ্চে উপবিষ্ট উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজিকে নমস্কার। আমার সামনে উপবিষ্ট মাতৃকুল, আমার সহ নাগরিকবৃন্দ, আজকের এই নির্বাচনী সভায় আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গটা বড় ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, পশ্চিমবঙ্গটা বড় কষ্টে আছে। আমাদের বঙ্গমাতা, আমাদের বাংলার মা বড় কষ্টে রয়েছে। আমাদের প্রসবাসন্ন জননী যেমন প্রসব যন্ত্রণা কষ্ট পান, তেমনি আমাদের বাংলার মা কষ্ট পাচ্ছেন। আমরা সবাই সমস্যার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি আর ভাবছি সব শেষ হয়ে যাবে। শেষ হবে না, এইখান থেকেই জন্ম নেবে নতুন পথ, নতুন দিশা। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এই দেশের সবার সমানভাবে থাকার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক মানুষ, তার যে কোনো মানুষ, সে ধর্ম বিশ্বাসী হতে পারে, ধর্মে অবিশ্বাসী হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ বলে যে শব্দটা কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল ব্যবহার করেন, এটা একটা চালাকি রাজনৈতিক শব্দ। মানুষ ধর্ম বিশ্বাসী হলে সে ধর্ম বিশ্বাস করবে এবং অন্য ধর্মকে সম্মান করবে। কোনো ধর্ম বিশ্বাসী যদি নিজের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে অন্য ধর্মকে আঘাত করে, রাষ্ট্রকে আঘাত করে, সে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অপরাধী। সুতরাং আমি বলবো, এই দেশে থাকতে গেলে রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকতে হবে, রাষ্ট্রবাদী হয়ে থাকতে হবে। ঠিক আছে, আমি
আপনাদের সবাইকে বলবো সামনের ভোটের দিন আপনারা সবাই আসুন, বুথে আসুন এবং সবাই ভোট দিন। মোদিজির হাত শক্ত করার জন্য আমাদের এইখান থেকে পদ্মফুল চেন্নে আমাকে ভোট দিয়ে আপনারা জয়যুক্ত করুন। নমস্কার। এবার আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন আমাদের জেলার সভাপতি লোহাকু নেতা সম্মানীয় সাকারাব সরকার মহাশয়। ওনাকে আমি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। উপস্থিত আজকের এই নির্বাচনী সভায় আমাদের প্রধান বক্তা সম্মানীয় যোগীজি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। আমি সেই কারণে আমি কোনো বক্তব্য দেব না, শুধু এই শক্তিপুর অর্থাৎ রেজিনগরের মানুষকে আমি বলতে চাই 2024 13ই এপ্রিল এবং 17 এপ্রিল যেভাবে এখানে দাঙ্গা লাগানো হয়েছিল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় আমি তখনই বলেছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের পাশে ছিল, আপনাদের পাশে আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। সেদিন এখানকার মানুষ আহ্বান করেছিলেন আমাদের পাশে, আমরা যোগীজিকে চাই, আমরা বুল্ডোজার বাবাকে চাই। আমি তাদের বলেছিলাম আপনাদের পাশে যোগীজি থাকবে, যোগীজি আছেন। আজ আমি পরম আনন্দিত, আমি পরম গর্বিত যে আজ যোগীজি আপনাদের পাশে এসেছেন। সেই কারণে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনাদের পাশে যে বিজেপি ছিল, লোকসভা নির্বাচনে আমরা ডক্টর নির্মল কুমার শাহকে যতক্ষণ পার্লামেন্টে না পাঠাতে পারবো ততক্ষণ আমরা 24/7 আমরা লড়াই করে যাব। কোনো লড়াই আমাদেরকে বন্ধ রাখতে পারবে না। আমি সেদিন 13 তারিখেই রাত্রি 1টার সময় এসেছিলাম, টিএমসি আমাকে আটকানোর জন্য 144 জারি করেছিল। 13 তারিখে 17 তারিখে আমাকে ঢুকতে দেয়নি। আজকে আসুন, তৃণমূলের কোন পুলিশ, কোন প্রশাসক, কোন টিএম, কোন এসপি আছেন আমাদেরকে পাল্লে আটকান। আজ এখানে জনসভা, আজকে জনজোয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। যার বক্তব্য শোনার জন্য আছেন যোগীজিকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আজ আমরা যোগীজি আমাদের পাশে পেয়েছেন। শুধুমাত্র আমি একটা গল্পের মাধ্যমে আমার বক্তব্য শেষ করব। পৌরাণিক গল্পে আছে, হয় হরিণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন কে? হয় হরি ঠাকুর। মহামায়াকে বধ করেছিলেন মহিষাসুর। আর রয়ে রাবণকে বধ করেছিলেন রামচন্দ্র। আর কয়ে কৃষ্ণকে বধ করেছিলেন কে? কংসকে বধ করেছিলেন কৃষ্ণ। আর আমি পশ্চিম বাংলার কয়েক কমিউনিস্টকে বধ করেছে, কংগ্রেসকে বধ করেছে কমিউনিস্টরা। আর এই কয়েক কমিউনিস্টকে বধ করলো 2011-তে কয়েক কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস। আর কংগ্রেস না থেকে এখন মোদিজি এসছেন। তাই আগামী দিনে এই মমতাকে বধ করবেন মোদিজি। সেই কারণে সবাইকে নির্মল শাহকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয় হোক। বলুন ভারত মাতা কি। আপনারা এই রোদের মধ্যে আপনার যার ভাষণ শোনার জন্য অধীর আগ্রহ করে আছেন, আজকে সেই হৃদয়ের, আমাদের হিন্দুদের হৃদয়মণি, হৃদয় সম্রাট, সেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি এবার আপনাদের সামনে তার মূল্যবান ভাষণ পরিবেশন করবেন। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दयामयी माँ काली की, दयामयी माँ काली की, माँ तारा की, माँ तारा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित
बहरामपुर के इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल कुमार साहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सी सखारब सरकार जी, जिला महामंत्री सी शंकर तरफदार जी, जिला महामंत्री महिला प्रकोष्ठ श्रीमती अनामिका घोष जी, जिला उपाध्यक्ष श्री रोहित जैन जी, जिला उपाध्यक्ष श्री सपन घोष जी, राज्य कमेटी के मेंबर अमिताभ रे जी, मंडल अध्यक्ष गोलोक बिहारी घोष जी, लोकसभा प्रभारी श्रीमती गार्गी दास घोष जी और भारी संख्या में आए हुए बहरामपुर के इस लोकसभा सीट में मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की पुण्य भूमि बंगाल की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भूमि बहरामपुर को और यहां के उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के आप सभी बहादुर जवानों को, बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी श्री आर.डी. बनर्जी, श्री राखल दास बंदोपाध्याय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी, उनकी पावन धरा भी ये बहरामपुर है। ऐसी पावन धरा में आप सबको जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आप सबका सौभाग्य है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, आज वो बंगाल जिसने कभी भारत को नवजागरण का मार्ग दिखाया था, बहनों और भाइयों, वह बंगाल आज लहूलुहान क्यों है, दिशाहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार, रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और
जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी के व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है। लेकिन बंगाल उससे वंचित क्यों हो गया? बहनों और भाइयों, ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत 2 प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसा करके
एक सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है, और दूसरा, दिल्ली में जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर के साजिश करना चाहते हैं माफिया और अपराधियों को यहां के सत्ता का संरक्षण बना करके दिल्ली से जो मोदी जी भेजते हैं वे सभी सब जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम भी करते हैं। और इसीलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश दंगा विहीन है, कर्फ्यू विहीन है, योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो यह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। और बंगाल में मोदी जी कोई काम भेजते हैं, कोई योजना भेजते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको यहां लागू ही नहीं होने देती। जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे हैं, बसे हैं। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उठते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं, और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है वैसे ही मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। और 191 सीटों पर चुनाव में बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है,
उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर आ रही है। कोई संदेह नहीं, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हुआ है, दुनिया में सम्मान बढ़ा है, डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बन रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी मिल रही है और सुरक्षा का ये माहौल बेहतर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि रामनवमी और बैसाखी के अवसर पर दंगा करने वाले या संदेश खाली की घटना के लिए जिम्मेदार इन गुंडों को सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है। एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए और रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, निर्मल कुमार शाह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मेरी आप सबसे विनती होगी, सबसे अपील होगी कि डॉक्टर निर्मल कुमार शाह कमल चुनाव चिन्ह के साथ, कमल चुनाव चिन्ह भी ये मां लक्ष्मी का आसन है, मां लक्ष्मी को लेके, मां लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि लेकर के आएगी, समृद्धि लेकर के, यानी सोनार बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बंगाल के साथ तो हमारा संबंध वही है कि हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की माटी के सपूत थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए यहां से डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे, बंगाल को दंगों से मुक्त करेंगे, कर्फ्यू से मुक्त करेंगे, भारत की सुरक्षा और समृद्धि को मोदी जी के हाथों में और सुदृढ़ करेंगे। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो आपके चेहरे पर खुशहाली आएगी। भारत विकसित भारत बनेगा, उसका लाभ हर भारतवासी को मिलेगा, 140 करोड़ भारतवासियों को मिलेगा। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से आवश्यक हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें सोनार बांग्ला बनाने के लिए डॉक्टर निर्मल कुमार शाह बहरामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं लखनऊ से यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वो काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना, 4 जून को परिणाम आएंगे तो 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, 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 मोदी सरकार
कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं, इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है और रामलला ने रामनवमी के दिन अपना पवित्र जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आपने भी देखा होगा ना यहाँ के टेलीविजन में। बहनों और भाइयों, अगर 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में ये सब संभव हो सकता है, तो बंगाल भी सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी के साथ कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल शाह को आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए मोदी जी का एक संदेश लेके आपको जाना पड़ेगा घर घर। और मोदी जी का यह संदेश कि आप सभी मतदान के दिन मतदान जरूर करें, हर एक व्यक्ति को मतदान स्थल पर जरूर लेके जाएं। डरने की आवश्यकता नहीं। भारत निर्वाचन आयोग आपकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगा। माताओं और बहनों को विशेष रूप से मैं कहूंगा, वे खूब धूमधाम के साथ, जिस उत्साह के साथ आज आप यहां मेरे कार्यक्रम में आए हैं, इसी उत्साह के साथ आप मतदान करने के लिए जाइए। मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाइए और कहिए सोनार बांग्ला के लिए मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सहमत हैं? डॉक्टर निर्मल कुमार शाह इधर आओ, मेरे साथ फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে সবাই বাড়ি যাবেন।